السلام علیکم۔ آج ہم ڈیجیٹل سروس ٹیچرس کے لیے جو سپٹمبر 2026 میں منعقد ہونے والا ہے اس تعلق سے چند باتیں معلومات حاصل کریں گے۔ RT 2009 CCE NSF NCF کے مطابق بہت اہم سوالات امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہ، اس کے اہم سوالات ہم دیکھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پہلا سوال ہے امتحانات اور جانچ کے مطابق ذیل میں سے ایک NCF 2005 کی رائے نہیں ہے، یعنی 4 ہیں جوابات، اس میں سے ایک ایسا ہے جو NCF کی رائے نہیں ہے۔ کون سا؟ امتحانات کے اوپن سسٹم کا نفاذ، زبانی امتحانات کے نظام کا خاتمہ، مختصر مدتی امتحانات کا تسلسل، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ متعین وقت کے پابند امتحانات۔ یہاں پر سب سے صحیح کیا ہے؟ یہ ہے زبانی امتحانات کے نظام کا خاتمہ۔ دوسرا سوال ہے NCF 2005 کا دوسرا باب اس سے متعلق ہے۔ NCF جو 2005 جو بنایا گیا اس میں سیکنڈ چیپٹر کس تعلق سے ہے؟ اقتصاد اور علم، جانچ، کمرے جماعت کا ماحول، ادارہ جاتی۔ کون سا ہے؟ سب سے پہلا ہے اقتصاد اور علم پر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے NCF 2005 کے مطابق صوبہ چہارم پنجم کے لیے گھر کا کام کے لیے متعین کردہ وقت ہے، یعنی 3rd 4th 5th کو جو ہوم ورک دینا ہے کتنے گھنٹوں کا ہونا چاہیے، یا بچہ جانے کے بعد مکمل طور پہ ہوم ورک کے لیے بزی ہو، یا ہفتے میں ایک مرتبہ دیا جائے۔ NCF نے جو ڈیسائیڈ کیا تو کیا ہے؟ وہ گھر کا کام نہ دیا جائے، روزانہ 1 گھنٹہ، ہفتے میں 2 گھنٹے، یا پھر کیا ہے؟ دن کے لیے 2 گھنٹے، ایک دن میں 2 گھنٹے۔ تو سب سے صحیح کون سا ہے اس میں؟ یہ روزانہ 1 گھنٹہ دینا چاہیے، کم سے کم 1 گھنٹہ، زیادہ زیادہ 2 گھنٹے روزانہ دینا ہے، 1 گھنٹہ روزانہ ہونا ضروری ہے۔ NCF 2005 کے ابتدائی جملے رابندر ناتھ ٹیگور کی اس کتاب سے لیے گئے۔ کون سا ہے؟ نمبر 1 ہے سویلائزیشن اینڈ پروگریس، اس کتاب سے لیے گئے۔ نمبر 5، کوشچن نمبر 5، NCF 2005 کے چیئرمین ہے۔ چیئرمین کون ہے؟ ڈاکٹر سوامی ناتھن، پروفیسر راما مورتی، پروفیسر یشپال، ڈاکٹر رام چندرن گپتا۔ یہ چاروں میں کون ہے؟ کون ہے؟ پروفیسر یشپال شرما ہے۔ سوال نمبر 6 کی طرف آئیے۔ تحلیلی جانچ فارمیٹو اسسمنٹ میں بچوں کی شراکت داری اور رد عمل کے لیے مختص کردہ نفرات کا فیصد ہے، کتنا فیصد ہونا چاہیے؟ کتنا فیصد ہونا چاہیے؟ 30 40 20 10، یہ 30 صحیح ہے۔ تعلیم امن کے لیے ایجوکیشن فار پیس کی تجویز پیش کرنے والا دستاویز، یہ چاروں دستاویزات ہیں، اس میں سے کون سے دستاویز ہے جس میں اس کا ذکر ہے؟ تعلیم امن کے لیے ایجوکیشن فار پیس کون سا ہے؟ نمبر 4 ہے NCF 2005 میں کہا گیا۔ سوال نمبر 8، NCF 2005 کا بنیادی پہلو کیا ہے؟ معلومات کی منتقلی، نصاب کی تکمیل، علم کی تشکیل، معلومات کو دہرانا۔ معلومات کی منتقلی یعنی جو کتاب میں ہو یا معلم کو ہو وہ بچوں کو منتقل کرنا، جو نصاب میں ہو وہ بچوں کو منتقل کرنا، یا اس نصاب میں جو دیا گیا سلیبس ہے وہ مکمل طور پہ بتا دینا۔ علم کی تشکیل، معلومات کو دہرانا، جو معلومات ہے ان کو ریپیٹ کرنا۔ یہ علم کی جو تشکیل ہے یہ اصل بنیادی پہلو ہے۔ سوال نمبر 9، NCF 2005
के मुताबिक फाइन आर्ट्स मजमून शामिल किया जाना चाहिए। यानी एक सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स, कहाँ पर? स्कूली तालीम के हर दर्जे में, सिर्फ प्राइमरी सतह पर, सिर्फ खानवी सतह पर, सिर्फ वस्तानी सतह पर। यहाँ पर एनसीएफ ने बताया कि इसको फाइन आर्ट्स की तालीम और मजमून जो होगा हर क्लास में होना चाहिए, स्कूली तालीम के हर दर्जे में होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के जरिए पेश किरदा अहम मुंतखली है। इक्तिसाब एक वसी समाजी तनाजुर में हो, इक्तिसाब किताबों के जरिए हो, इक्तिसाब किताबों के जरिए हो, इक्तिसाब कमरे जमात में हो, इक्तिसाब मौलिम की रहनुमाई में हो। इक्तिसाब क्या है? एक वसी समाजी तनाजुर में होना चाहिए। सवाल नंबर 11, आरटीई 2009 के मुताबिक ये इदारा रियासती सतह पर निसाब की तैयारी और जांच का जिम्मेदार है। SIET, NCERT, SCERT, NCTE, ये NCT है जो निसाब की तैयारी और जांच का जिम्मेदार होगा। सवाल नंबर 12 क्या है? जेल में एक स्कूल इंतजामिया कमेटी SMC के दायरे अख्तियार में शामिल नहीं है। स्कूल के काम की निगरानी करना, स्कूल की तरक्की का मंसूबा तैयार करना, तरक्याती फंड के इस्तेमाल की निगरानी करना, असातिज़ा के तबादले करना, यानी स्कूल के काम की निगरानी करना ये SMC के जिम्मेदारी है। स्कूल की तरक्की के लिए मंसूबा तैयार करना और अमल करना SMC की जिम्मेदारी है। फंड जो आएंगे उसका इस्तेमाल करना, सही हो रहा गलत देखना SMC की जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी नहीं है वो क्या है? असातिज़ा के ट्रांसफर्स करना। सवाल नंबर 13 है, बच्चों के हुकूक की फहरिस्त में खेल का हक इसके तहत आता है। इसके तहत आता है तरक्की पाने का हक, जीने का हक, हिस्सा पाने का हक, तहफ़्फ़ुज़ पाने का हक। कौन से हक में खेल का जो हक है कौन से आता? तरक्की पाने का हक में आएगा। नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 14, बच्चों के हुकूक की फहरिस्त में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का हक इसके तहत आता है। हिस्सा लेने का हक, जिंदा रहने का हक, तहफ़्फ़ुज़ पाने का हक, तरक्की पाने का हक। क्या है? जिंदा रहने का हक। जवाब नंबर 2 सही है। एक प्राइमरी स्कूल में तलबा की तादाद 155 है। RTE 2009 के मुताबिक असातिज़ा दरकार होंगे। कितने असातिज़ा वहाँ पर स्कूल में रह सकते हैं? 5, 4 प्लस सदर मुदर्रिस, 5 प्लस सदर मुदर्रिस, 3 प्लस सदर मुदर्रिस। कितने होंगे? अब वो 5 जमा सदर मुदर्रिस होंगे। तीसरा जवाब सही है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है कौन सा? 20 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14 नवंबर, 20 नवंबर। कौन सा है? 20 नवंबर है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन 20 नवंबर है। सवाल नंबर 17 है, कमरे जमात में इक़दार की तालीम के लिए जिम्मेदार टीचर है। यानी अखलाक़ी तालीम हो, इक़दार की तालीम हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? साइंस का टीचर, रियाजी का टीचर, ज़बान के टीचर, PE टीचर। ज़बान का मतलब लैंग्वेज पढ़ाने वाले। कौन है कमरे जमात में इक़दार की तालीम के लिए जिम्मेदार? कौन है? ज़बान के टीचर के जिम्मेदारी है। RTE सवाल नंबर 18, RTE 2009 कब से लागू हुआ सिवाय रियासत जम्मू कश्मीर के? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 5 अप्रैल 2006, 7 अप्रैल 2007। कब से हुआ? ये 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल है, लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ। सवाल नंबर 19 है। सवाल नंबर 19 है क्या है? 26 अगस्त
2009 को पार्लियामेंट के जरिए किसके हाथों इस कानून पर दस्तखत करवाकर मुतारफ कराया गया, यानी किसके दस्तखत के बाद ये कानून बना। वज़ीर आज़म, सदर जमहूरिया, अरकान पार्लियामेंट, स्पीकर। सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद ये कानून मुतारफ करवाया गया। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, 6 या 14 साल की उम्र के तमाम बच्चों को तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है। मुफ्त में, लाजमी, मुफ्त और लाजमी, कोई भी नहीं। यानी 6 से 14 साल के बच्चों पर जो तालीम है वो मुफ्त भी हो, लाजमी हो और तमाम को देनी जिम्मेदारी है। सवाल नंबर 21, सदाकतनामा, तारीख़ पैदाइश और टीसी के ना होने पर या किसी भी दूसरी वजह से मदरसे में शिरकत से इनकार ना किया जाए। नहीं, जो बच्चा एडमिशन के लिए आता है किसी भी क्लास के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 9 तक, जो भी क्लास में शिरकत के लिए बच्चा जो आता है 8 क्लास तक, उनके लिए टीसी, तारीख़ पैदाइश के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए टीसी या कुछ और चीज़ें ना हो तो भी हम उनको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के तहत ले सकते हैं। ये किसने कहा? सवाल नंबर 21, RTA एक्ट 2009, CCE, NFC 2005, ऑल। ये सही है, RTA एक्ट 2009। आपको ये वीडियो मुनासिब नज़र आए या फिर मालूमाती हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसी तरह के कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी।